So distillation, if we talk about distillation, how do we distill, all right, two compound, and how do we separate, right? How do we separate two compounds, right? So then the method or simple, then the method is called simple distillation method, right? If two organic compound are not, if two organic compound are miscible, अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, if two organic compound are miscible, right? अगर वो miscible होते हैं तो then, right, the method which we use for separation, that is called distillation method. तो फिर हम distillation method को use करते हैं उनको separate करने के लिए, right? You can see what type apparatus we required, right? किस तरह के apparatus हमें चाहिए इस method के लिए. तो as I already told, first we need distillation assembly. एक तो आपको distillation assembly चाहिए, then you require two compound, आपको दो liquid compound चाहिए, right? आपको क्या चाहिए इसके लिए, दो आपको liquid compound भी चाहिए, right? And then you need to take not only these things, right? You can see distillation assembly, round bottom flask, आपको क्या चाहिए, round bottom flask भी चाहिए, right? You need thermometer also, so that you can check boiling point of liquid, आप liquid का boiling point check कर पाओ, right? Receiving flask, you require receiving flask also, आपको receiving flask भी चाहिए, and heating mantle भी चाहिए, right? Heating mantle अभी मैं आपको दिखाऊंगा. Heating mantle, you require heating mantle, receiving flask, thermometer, round bottom flask, distillation assembly, right? And maybe two compound, one is ethanol and other is water, right? क्योंकि मैंने कहा ethanol water में क्या हो जाता है, properly mix हो जाता है, right? If I talk about oil and water, तो they are immiscible, right? Oil और जो water होते हैं वो immiscible होते हैं, उनकी दो separate layer बनती है, and then we separate those solvent with help of separating funnel, right? But because ethanol and water are miscible, ethanol और जो water होता है वो miscible होता है, वो एक दूसरे में क्या हो जाता है, properly mix हो जाता है, तो they can not separate with help of separating funnel, right? तो उनको separating funnel की help से separate नहीं किया जा सकता है, right? उनको separating funnel की help से separate नहीं किया जाता है. Then we required use distillation method, right? We know what about the boiling point of ethanol, right? Ethanol का boiling point कितना है, around 70 के around है, right? We have already discussed this point, right? The boiling point of ethanol is 78, right? You can see here the boiling point of ethanol is 78, and you people already know boiling point of water is 100. It means when you apply temperature, right? When you apply temperature at 78 degrees Celsius, the molecule of ethanol change from liquid to vapor or liquid to gas, right? जो molecule होंगे ethanol के वो vapor में convert हो जाएंगे, and then we separate that with help of distillation assembly, right? Distillation assembly की help से हम उनको क्या करेंगे, separate. It means इन रिसीवर, जो रिसीवर होगा उसमें आपको इथेनॉल मिल जाएगा, और जो आपके पास जो राउंड बॉटम फ्लास्क होगी उसमें आपको वाटर मिल जाएगा. नाउ यू कैन सी learning object. What about the learning object? To identify the sample depend on their boiling point, right? So with help of boiling point we can identify sample, right? तो sample को हम identify कर सकते हैं with help of boiling point के basis, right? This is first learning point. Second learning point, to understand the fractional distillation method. इसकी हेल्प से यू अंडरस्टैंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये आपको पता चल जाता है विद हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, राइट? टू स्टडी द चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड विद वेरिएशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. जब हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह से चेंज आते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, द बॉइलिंग पॉइंट यू कैन सी हियर, right? As I already told, right, the boiling point of different compound different, right? जैसे मैंने कहा इथेनॉल का 78 है, एंड आप देखिए आपका टोलिन का कितना है, 110 है. टोलिन का 110 है एंड एनालिन का 184 है, राइट? एनालिन एंड टोलिन बोथ आर लिक्विड कंपाउंड, राइट? The boiling point of toluene is 110 and the boiling point of aniline is 184, right? So if CH3 replaced by NH2, then the boiling point change from 110 degrees Celsius to 184 degrees Celsius. So when we change functional group, जब हम functional group को change करते हैं, तो then how the boiling point change, it is also clear with help of this experiment. इस experiment की help से आपको ये भी clear हो जाता है, right? So fractional distillation method, right? To
right? So two miscible liquid, right? There required two miscible liquid, you can see, right? तो एक water हो सकता है और एक क्या हो सकता है आपका ethanol हो सकता है, right? So you understand the process, right? Understand the process of azeotropic distillation, right? Of two miscible liquid, दो miscible liquid का जो azeotropic distillation होता है वो भी हमें पता चलता है, right? Now you can see this is assembly. अब आप देखिए this is assembly. ये assembly है, right? You can see here, right? There is assembly. Assembly में क्या है, right? You can see here. This there is a round bottom flask. वहां पे क्या है, एक तो round bottom flask है. Connectivity problem. Okay. There is a distillation. You can see here round bottom flask. This is your round bottom flask, right? You can see this is your round bottom flask, right? And this is you can see this is your round. This is you can see, right? This is heating mantle. ये नीचे Okay, now you can see, right? There is a round bottom flask. There is a round bottom flask, and now the PPT is visible, I think. PPT is visible now to all. Okay, so you can see here, there is a round bottom flask and there is a heating mantle also. This is heating mantle. You can see this is heating mantle, right? And this is round bottom because there is a connectivity problem also, right? So this is heating mantle. This is heating mantle for apply. This is heating mantle for apply heat, right? And this is round bottom. You can see here, this is round bottom flask, right? This is round bottom flask, right? And you can see this is distillation assembly, right? You can see here, this is distillation assembly also, right? Now you can see these all things required, right? So here you apply heat. Here two solvent are mixed together. One is water and second is ethanol, right? So when you apply heat, right? And here you can see here this is a thermometer. You can see this is thermometer which is connected here, right? So then you can see when we apply temperature around 78 degree Celsius, right? जब हम 78 degree Celsius temperature को apply करेंगे, तो then only ethanol molecule will vaporized. Only ethanol molecule will vaporize, right? And then ethanol molecule, vapors of ethanol molecule come inside this condenser. इसे कहते हैं water condenser. क्या कहते हैं इसका नाम? वाटर कंडेंसर. यहाँ पे वाटर्स की बाहर से क्या होती है, वाटर की जैकेट होती है, राइट? जिससे क्या होता है, जो आपका वेपर्स होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो हियर यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए यहां से वाटर का फ्लो होता है इस कंडेंसर में, यहां से वाटर का फ्लो होता है और यहां से वाटर बाहर आती है. तो यहां से कोल्ड वाटर और यहां से हॉट वाटर, यहां से कूल वाटर, यहां से हॉट वाटर. बिकॉज व्हाई दे कन्वर्ट इनटू हॉट वाटर? बिकॉज द वेपर्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड. बिकॉज यहाँ पे जो वेपर्स होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट. दिस इज रिसीवर. यू कैन सी ये क्या है, रिसीवर है, जिसमें आपको एट द एंड क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, राइट? तो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है, राइट? आप देखिए, ये आप देखिए, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क एंड दिस इज हीटिंग मेंटल.
ये आपका हीटिंग मेंटल है एंड दिस इज योर राउंड बॉटम फ्लास्क। इन राउंड बॉटम फ्लास्क इथेनॉल एंड वाटर, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रहता है, इथेनॉल और वाटर रहता है। तो व्हेन यू अप्लाई हीट, जब आप हीट को अप्लाई करते हो तो फिर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल विल वेपोराइज, राइट। सबसे पहले इथेनॉल क्या होगा, वेपोराइज होगा, बिकॉज दियर बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री, राइट, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 डिग्री है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना, 100 है, तो वो अभी वो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो इन इनिशियल स्टेट एट 78 डिग्री यू कैन चेक द टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से आप चेक कर सकते हो कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 78 डिग्री, राइट। यू कैन चेक द टेम्परेचर इज अराउंड 78, इट मींस ओनली इथेनॉल मॉलिक्यूल वेपोराइज, राइट। एंड देन इथेनॉल मॉलिक्यूल कम इन द कंडेंसर, इस कंडेंसर के अंदर आएंगे, यहाँ कोल्ड वाटर जा रहा है, यू कैन सी हियर कोल्ड वाटर जो है वो चल रहा है, कूल वाटर जो है वो आपका चल रहा है, राइट। एंड ये क्या, कूल वाटर क्या करेगा, जो वेपर्स को रहेंगी वो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, एंड देन दे कम हियर इन ए रिसीवर, राइट। तो रिसीवर में फिर आपको इथेनॉल की ड्रॉप्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। देन यू कैन आफ्टर सम टाइम इफ यू मेंटेन टेम्परेचर अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस, अगर आप टेम्परेचर को 78 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हो तो धीरे धीरे करके आपको यहाँ इथेनॉल इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो हियर at the end here only water, right, high boiling point solvent यहाँ रह जाएगा water, and यहाँ आपका ethanol रह जाएगा। तो this is called distillation method for separation of two miscible liquid, right। तो दो miscible organic compound को, दो miscible liquid organic compound को कैसे करके हम separate करते हैं, ये उसका method है, and this is called distillation method, right। so this is one of the important experiment in your syllabus, आपके syllabus में आप देखो ये भी same experiment है, ये भी सेम एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा क्या है, इसको थोड़ा हाइट दे दी, राइट। समटाइम क्या होता है, इस तरह का आप एक और एपरेटस यूज कर देते हैं, दिस इज आल्सो कंडेंसर, ये एयर कंडेंसर है, एयर कंडेंसर बिकॉज इसमें हमने वाटर की जैकेट नहीं लगाई है, यहां से भी एयर आ रही है, यहां से भी एयर आ रही है, राइट। तो सेम, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नॉट मच मोर हाई, अगर एक ही 78 है और दूसरे का 100 है, इट मींस अराउंड कितने का डिफरेंस आ गया, 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया वाटर और इथेनॉल में, राइट। तो फिर आपने वो वाला मेथड यूज करे। बट इफ द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ टू लिक्विड इज वेरी स्मॉल, अगर वो बहुत कम है, इट मींस 5 to 10 डिग्री सेल्सियस है, तो देन वी नीड टू यूज दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करना पड़ता है, राइट। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ता है, राइट। तो ये भी एक कंडेंसर है, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका सपोज दैट दो सॉल्वेंट का मिक्सचर है, राइट। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब आप क्या करोगे, हीटिंग मेंटल से आप हीट अप्लाई करोगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सपोज दैट इथेनॉल है, राइट, एक कंपाउंड जिसका 78 है, और दूसरा कंपाउंड आपका कोई और है, बी कंपाउंड है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज दैट कितना है, 85 डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट कितना है, 85 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर क्या होगा, उनको इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी स्मॉल, राइट। बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है बहुत कम है, राइट। तो फिर उस केसेस में क्या करना पड़ता है, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ता है। तो ये फ्रैक्शनल कॉलम, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल कॉलम, ठीक है ना। अब यहां से स्टार्ट होगा, जो 78 वाला होगा वो पहले बॉयल होगा, लेकिन क्योंकि दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग उसके नजदीक है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा, उसकी भी थोड़ा थोड़ा वेपर्स बनेंगे, राइट। लेकिन बिकॉज ये जो है, इसकी जो हाइट है ये काफी ज्यादा है, तो जो आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा वही क्या करेगा, ऊपर जा पाएगा, राइट। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लिक्विड होगा वो ऊपर नहीं, उसकी वेपर्स ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, राइट, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, राइट। तो जो आप देखो, एक हैवी है और एक लाइट वेटेड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इट मींस वो लाइट वेटेड है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो क्या है, हैवी, कंपैरेटिवली हैवी है। तो हैवी वाला क्या होगा, इतने तक जा करके देन दे कम बैक, राइट। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बेटा अभी 5-10 मिनट और क्लास चलेगी, 5 to 10 मिनट, राइट। तो क्या होगा फिर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिसका बॉइलिंग जो हैवी होगा, इट मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा वो, या 85 डिग्री सेल्सियस होगा, वो यहां तक जाकर के फिर दे कम बैक इन दी राउंड बॉटम फ्लास्क, वो बैक आ जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क, राइट। वो बैक आ जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क में, राइट। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इट मींस इथेनॉल, इथेनॉल
come at this level, right? And then by distillation, here ethanol and here B solvent, right? So if the boiling point difference is very small, if the boiling point difference is very small, अगर boiling point का difference जो होता है वो कम होता है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ता है, आपको ये फ्रैक्शनल चेंबर का यूज करना पड़ेगा, सो दैट जो डिफरेंस कम है उसकी वजह से प्रॉब्लम ना आए, राइट? तो इसमें ऊपर जब दोनों के दोनों लिक्विड की वेपर्स जाएंगी, तो जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड वेपर होगा, दे विल कम बैक इन राउंड बॉटम फ्लास्क, दे विल कम बैक इन राउंड बॉटम फ्लास्क, while light or lower boiling point molecule will come at this level, they reach at this point and then they come and separate in this receiver, right? So this is difference between fractional distillation and simple distillation. Simple distillation में आप देखिए यहाँ पे कोई भी हमने fractional chamber का use नहीं किया है, because the boiling point difference is high, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए हमने सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किया. तो दीज टू मेथड्स आल्सो इंपॉर्टेंट, वन इज सिंपल डिस्टिलेशन मेथड एंड सेकंड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. Where we use simple distillation and fractional distillation, simple distillation को हम तब यूज करते हैं जब दो मिक्सेबल जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस का होता है, जैसे कि वाटर और इथेनॉल हो गया, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. बट इफ द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन टू लिक्विड इज नॉट more than 10, right, 5 to 10 degree Celsius का difference है, then we need to use fractional chamber. तो उसमें हमें ये fractional chamber को use या air condenser का use करना पड़ेगा, right, so that we can separate, right, क्योंकि उनमें boiling point में बहुत कम difference है, उनको easily separate नहीं, तो इसलिए fractional chamber का use किया. And then this is called fractional distillation method. फिर इसे क्या कहते हैं, fractional distillation method कहते हैं, right? तो इस तरह से fractional distillation method we use for separate to liquid, their boiling point difference is very small, right? If boiling point difference high, then we use this this method, and this method is called simple distillation method, right? तो इस तरह से मैंने आपको बताया. We understand about, you can see here, identify sample on the basis of boiling point. Second, to understand about fractional distillation method. Fractional distillation method क्या होता है, fractional column क्या होता है, कहाँ हम उसका यूज करते हैं, ये भी हमें पता चल गया, right? Change boiling point in compound with variation. If we change functional group, तो then the boiling point also change, ये भी हमें पता चल जाता है, right? इस तरह से ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है, राइट? नाउ यू कैन सी, राइट, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा आपको, राइट? नाउ यू कैन सी आफ्टर दैट दिस इज द मेथड, राइट, दिस इज द मेथड, you can see experiment. This is the experiment to determine the boiling point by distillation method, right? Distillation assembly हमने यूज की, राउंड बॉटम फ्लास्क यूज किया, थर्मामीटर यूज किया, रिसीवर फ्लास्क यूज किया, और ये सारी चीजें, राइट? And before that we have a discussion on to calibrate thermometer. First, to calibrate thermometer, किस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी अननोन कंपाउंड का क्लियर करना है. तो देन देयर इज ए एक्सपेरिमेंट टू कैलिब्रेट थर्मामीटर. फर्स्ट हमें क्या करना है, थर्मामीटर को कैलिब्रेट करना है, राइट? एंड देन वी डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है, राइट? कैलिब्रेशन थर्मामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. क्यों होता है? बिकॉज समटाइम थर्मामीटर गिव करेक्ट रीडिंग और समटाइम दे नॉट गिव करेक्ट रीडिंग, राइट? समटाइम क्या होता है, जो थर्मामीटर होता है वो सही रीडिंग देता है और समटाइम वो सही रीडिंग नहीं देता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर डिटरमाइन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी नीड टू कैलिब्रेट आवर थर्मामीटर. हमें अपने थर्मामीटर को कैलिब्रेट करना पड़ता है. उसके लिए हम थर्मामीटर को क्या करते हैं, थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, नून जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल आइस का, राइट, मेल्टिंग पॉइंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वी विल क्लियर दैट, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर, राइट? अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना तो वाटर का देखिए 100 आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर 100 आ रहा है थर्मामीटर में, इट मींस आपका जो थर्मामीटर है वो करेक्ट है, राइट, फॉर बॉइलिंग फॉर बॉइलिंग एक्सपेरिमेंट, राइट? तो इस तरह से थर्मामीटर चाहिए, बीकर चाहिए, हीटिंग प्लेट या बर्नर चाहिए, राइट? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस चाहिए, कैपिलरी ट्यूब चाहिए, थाइल ट्यूब चाहिए, राइट? यूरिक एसिड, यूरिया हो गया, एस्टेनोलाइट हो गया, नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, सक्सेनिक एसिड हो गया, सिनामिक एसिड हो गया,
salicylic acid, meta dinitrobenzene, para dichlorobenzene, aspirin, right? These are solid compound, right? Their melting point we can measure, and based on their melting point we can identify these compound also, right? तो melting point के basis पे हम इन compoundों को identify भी कर सकते हैं, right? So this is very important experiment, right, to determine the melting point of organic compound, right? क्या क्या apparatus चाहिए, क्या experiment है, right? क्या क्या compound का melting point हम learning objective क्या है? To understand the process of calibration of thermometer using known sample, right? known sample की help से we determine और we understand calibration of thermometer कि किस तरह से thermometer को calibrate किया जा सकता है, right? Variation in the value of thermometer reading by comparing it with melting point apparatus, right? तो melting point apparatus की help से आप देखिए क्या आपका melting point apparatus आपका thermometer क्या variation तो नहीं दे रहा, right? Maybe 5 to 1 to 3 degree Celsius का difference तो नहीं आ रहा, वो भी आपको clear हो जाता है. To determine the melting point of any unknown compound, हम बहुत सारे टाइप्स के अननोन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट? टू आइडेंटिफाई द सैंपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें, ये दीज आर देयर लर्निंग पॉइंट to study the change in melting point of compound with variation in functional group. So if we change functional group, then how the melting point of compound change, it is also clear with help of this experiment, right? तो इस experiment की help से हमको ये भी clear हो जाता है कि अगर हम किसी compound के functional group में change करते हैं तो उसके melting point में भी क्या होता है, change होता है. This is apparatus, as I already discussed. This is apparatus. यहाँ पे आपका burner है. This is burner. This is, you can see, this is apparatus. Here we apply temperature. यहाँ पे हम heat को apply करेंगे. यहाँ पे हमने oil use किया है. यहाँ पे मैंने कहा rubber band लगा हुआ है. ये आपका capillary है, melting point capillary है, and this is your thermometer, right? So thermometer for measure temperature, right? And this is oil. Why we use oil? So that कि homogeneously temperature इसका बढ़े, right? इस कैपिलरी का भी बढ़े और इस थर्मोमीटर का भी बढ़े, right? So we use here oil, right? So slowly we apply temperature, their temperature increase, and when the solid convert into liquid, we check that point or that temperature, that is melting point of your your solid organic compound, right? तो इस तरह से ये भी apparatus है, right? नाउ सेकंड apparatus, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया था, राइट? करेक्ट टेम्परेचर हमें पता चल जाता है. रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, देन वी क्लियर अबाउट करेक्ट टेम्परेचर क्या है, राइट? अननोन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वी आल्सो क्लियर दैट, राइट? एक्सपेरिमेंट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ करेक्शन, राइट? टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो करेक्शन करने में हेल्पफुल है, और डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने में भी यूजफुल है, राइट? व्हिच कैन यूटिलाइज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, राइट? हम इसका यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में, राइट? So this is the point we have already discussed. Next point, to determine the boiling point by capillary, right, मेथड. कैपिलरी मेथड से बॉइलिंग पॉइंट को कैसे मेजर करते हैं और कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो कैपिलरी ट्यूब चाहिए, थाइल ट्यूब चाहिए, थर्मामीटर चाहिए. दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? एंड विच कंपाउंड एंड we use for measure their boiling point. So you can see ethanol है, ethyl acetate है, right? Toluene है, right? And butanol है, aniline है. Different boiling point है, and we can measure their boiling point, and we can identify these compound with help of this method. इस method की help से हम इस तरह से different types के compounds का boiling point क्या कर सकते हैं, clear कर सकते हैं, right? We can clear boiling point of different compound with help of this method, right? तो यहाँ पे मैंने कहा इस मेथड की लर्निंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इससे हमें क्या लर्न होता है. टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी अननोन सैंपल, किसी भी अननोन सैंपल का हमें बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो जाता है, राइट? बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन और मोर देन 100, आइदर देयर बॉइलिंग पॉइंट हायर, राइट? मोर देन 100 है या लेस देन क्या है, 100 है. We can clear or we can determine that, right, with help of this experiment. To identify the sample depend on boiling point, right? We can identify sample as I already told, right? If 111 degree Celsius, it means that is toluene, right? तो इस तरह से कौन सा कंपाउंड है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं with help of this method, right? To study the change of boiling point in compound with variation of functional group, right? So if functional group change, then how their boiling point change, we also study, right, with help of this experiment, right? इस experiment की help से हमें ये भी पता चल जाता है, right? You can see
Now next point you can see, right, this is apparatus, this is melting boiling point apparatus, आप देखिए, right, तो यहाँ पे क्या है, this is thermometer, you can see, अगर आप नीचे से देखना चाहिए, if you see, this is hot plate, this is called hot plate. Hot plate means with help of this plate we can apply हीट, राइट, इस प्लेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हीट को अप्लाई करते हैं, विद हेल्प ऑफ दिस प्लेट वी अप्लाई हीट, राइट, तो दिस इज थर्मोमीटर, सबसे पहले ये थर्मोमीटर है, then this is connected with capillary, right, it is connected with sample capillary tube, right, sample in capillary tube, right, is capillary tube में then we with help of thread, right, we tied that, right, tied कर देंगे इसको, right, and then we here we use paraffin oil or glycerol, यहाँ पे हम paraffin oil और glycerol का use करते हैं so that uniformly increase temperature of your compound, your liquid compound and also this thermometer, right, thermometer का भी और इसका भी यूनिफॉर्मली क्या हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो, राइट, 50 ml का आपने बीकर लिया है, राइट, राइट, तो व्हेन द लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, जब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो, व्हेन द लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर देन वी मेजर दैट टेम्परेचर, देन वी डिटरमाइन दैट टेम्परेचर विद हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की हेल्प से हम उस टेम्परेचर को क्या कर देंगे, डिटरमाइन कर देंगे, राइट, एंड दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आवर लिक्विड कंपाउंड, हमारे लिक्विड कंपाउंड का वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट, तो इट शुड बी क्लियर, दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी क्लियर आल्सो, राइट, boiling point, this is part of your syllabus also, right, you can see. Now after that this is also one photograph, right, you can see it's a very clear, clearly visible, right, you can see this is oil, right, here oil, right, and here you can see this is your thermometer, right, here you can see this is mercury, right, and here you can see boiling point sample, right, here this is boiling point sample, right, we want to check boiling point of this sample, right, its color also here, right, so you can see here this is burner, right, so when we on a burner, right, so then after that the temperature of this oil increase, right, and slowly the temperature of thermometer and this sample also increase, right, तो इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर भी और इसका भी यूनिफॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये सैंपल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सैंपल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दिस सैंपल कन्वर्ट इनटू वेपर, आफ्टर सम टाइम यू सी दिस सैंपल कन्वर्ट इनटू वेपर, राइट, एंड देन यू चेक, देन यू डिटरमाइन दैट और मेजर दैट टेम्परेचर इन दिस थर्मोमीटर, राइट, इस थर्मोमीटर में फिर आप उस टेम्परेचर को क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे, राइट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आपके लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट, तो इस तरह से आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स को मेजर करते हो, राइट, तो दिस इज दीज आर three important experiment, right, as per your syllabus, it should be clear, right, so I think there is no problem related to these experiment, right, these three important experiment to determine the melting point of compound, to determine the boiling point of compound, and to determine and how do we use distillation for separation of miscible organic compound, right, separation of miscible organic compound, this is about that, right. So I think all these experiments are very easy, right, you can do these experiments very easily, right, and our last point of discussion, this is about elimination and addition, you can see here elimination and addition mechanism, right, if we talk about nucleophilic aromatic substitution reaction, so there is one method, one a type of mechanism where first step is addition and second step is elimination, and second mechanism for first step is elimination and second step is addition, so this is called elimination addition nucleophilic aromatic substitution reaction. So if you have aryl halide, there may be chlorobenzene, there may be chlorobenzene, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है या aryl halide है, right, if they react with sodium amine and ammonia, then they convert into aniline, right, there is no electron withdrawing group, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, राइट, तो इफ यू हैव ए कंपाउंड, राइट, दैट इज क्लोरोबेंजीन, अगर कोई कंपाउंड है और वो क्या है, क्लोरोबेंजीन है, राइट, एंड दैट रिएक्ट विद सोडियम अमाइन, और वो किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम अमाइन से, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, देन दे कन्वर्ट इनटू एनालिन, राइट. So important thing related to elimination addition reaction is there is no electron withdrawing group, वहां पे कोई भी electron withdrawing group नहीं, right, it means your ring is not activated,
रिंग कब एक्टिवेटेड होती है? रिंग तब एक्टिवेटेड होती है जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट मींस योर रिंग इज नॉट एक्टिवेटेड, योर रिंग इज नॉट एक्टिवेटेड फॉर द प्रोसेस, राइट। तो ये रिंग न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अभी एक्टिवेट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर न्यूक्लियोफाइल इज एन एक्सट्रीमली गुड। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नॉर्मली वी यूज हियर सोडियम अमाइन और पोटेशियम अमाइन। नॉर्मली यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? या तो सोडियम अमाइन का यूज करते हैं या तो पोटेशियम अमाइन का यूज करते हैं। तो व्हेन वी यूज सोडियम अमाइन और पोटेशियम अमाइन, then they easily give NH2 minus and K plus और Na plus। तो वहां पे Na plus बनता है, K plus बनता है and NH2 minus बनता है, राइट। तो NH2 minus is a strong nucleophile, right? So then they attack at this position, right? Now you can see what about their mechanism? You can see what about their mechanism? So this is your compound. You can see X means Cl. It may be halogen, right? So benzene connected with, this is halobenzene. This is halobenzene. So now potassium amine or sodium amine give NH2 minus, right? Amine group. That amine group attack at this position, hydrogen, right? Then they remove NH3, ammonia gas, right? And here this sigma bond convert into pi bond. You can see this sigma bond convert into pi bond, right? And this sigma bond convert into negative charge. So now they convert into this types of carbonyl. तो इस तरह के कार्बेनाइन में बन जाएगा। NH2 प्लस ने H प्लस को ले लिया और NH3 निकल गया, और यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज एलिमिनेशन पार्ट, बिकॉज H प्लस निकला, एलिमिनेशन हुआ। इन सेकंड पार्ट यू कैन सी यहाँ पे क्या होता है, Cl माइनस विल मूव आउट। यहाँ से Cl माइनस या X माइनस निकल जाएगा, ये देखिए आप, Cl माइनस और X माइनस रिमूव आउट हो गया, राइट। देन दे कन्वर्ट इनटू बेंजाइन। अब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दैट कन्वर्ट इनटू बेंजाइन इंटरमीडिएट। वो किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट। इट मींस H प्लस यहां पे निकल गया और Cl माइनस यहां पे निकल गया। ये दोनों स्टेप क्या है, एलिमिनेशन। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड कॉल्ड एलिमिनेशन स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसको आप एलिमिनेशन स्टेप कहोगे। एंड इस स्टेप में क्या बना आपका, बेंजाइन। क्या बना आपका, बेंजाइन एज ए इंटरमीडिएट। आपका बेंजाइन बना एज ए इंटरमीडिएट, राइट। नाउ इन सेकंड स्टेप, अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो बेंजाइन होगा ना, दैट रिएक्ट विद NH2 minus once again। ये एक बार फिर से NH2 minus से रिएक्ट करेगा, एंड देन NH2 minus ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में। एंड देन दिस पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये जो पाई बॉन्ड होगा ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देन यू कैन सी, तो दिस इज एडिशन, because benzene react with NH2 minus and convert into this types of इंटरमीडिएट, राइट। तो यहां पे क्या आ गया, NH2 आ गया, राइट। तो ये एडिशन हो गया। नाउ इन सेकंड स्टेप दैट इंटरमीडिएट रिएक्ट विद अमोनिया। ये इंटरमीडिएट जो होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, अमोनिया, NH3 से। अब NH3 क्या देगा, H प्लस देगा, राइट। एंड देन H प्लस कम एट दिस पोजीशन, राइट। तो दिस इज आल्सो एडिशन स्टेप। यू कैन सी दिस इज आल्सो एडिशन स्टेप। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एडिशन and this step is called elimination, and overall this mechanism is called elimination addition mechanism, right? So within a minute the link will expire and then the class will over, right? तो आप देखिए इस तरह से इस